السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کا 7واں سبق دھات اور ادھات میٹلز اینڈ نان میٹلز یہ سبق کا مطالعہ کریں گے۔ دنیا کی تمام چیزیں یا اشیاء عناصر، مرکبات یا دونوں کے آمیزے سے بنی ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ان تمام عناصر کی دھات، ادھات اور دھات نما میں جماعت بندی کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دھات میٹلز دیکھتے ہیں۔ سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ایلومینیم، میگنیشیم، کیلشیم، پلاٹینیم یہ سب دھاتوں کی مثالیں ہیں۔ دھاتوں میں چمک ہوتی ہے، یہ سخت ہوتی ہے، ورق پذیر اور تار پذیر ہوتی ہیں۔ دھاتیں حرارت اور برق کی عمدہ موصل ہوتی ہیں۔ دھاتیں ان کے گرفتی الیکٹران کھو کر مثبت برقیدہ آئن یعنی کیٹائن تیار کرتی ہیں۔ آئیے اب دھاتوں کی طبعی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ دھاتوں کی طبعی حالت: عمومی درجہ حرارت یعنی کمرے کے درجہ حرارت پر دھاتیں ٹھوس حالت میں ہوتی ہیں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ایلومینیم، میگنیشیم، کیلشیم، پلاٹینیم وغیرہ۔ لیکن کچھ دھاتیں ایسی ہیں جو عام درجہ حرارت پر مائع حالت میں پائی جاتی ہیں، جیسا پارا اور کیلیم۔ آپ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ دواخانے گئے ہوں گے۔ آپ نے ڈاکٹر کے پاس خون کا دباؤ ناپنے کا آلہ اسٹگمومانومیٹر دیکھا ہوگا۔ اس کی کانچ کی نلی میں ایک ہلکے سرمئی رنگ کا مائع دیکھا ہوگا۔ یہ کون سی دھات ہے؟ یہ پارا ہے، جو عام درجہ حرارت پر مائع حالت میں ہوتا ہے۔ دھاتوں کی دوسری طبعی خصوصیات ہے چمک۔ اپنے گھر کے کسی تانبے کے برتن کو لیمبو سے رگڑیے اور پھر پانی سے دھو ڈالیے۔ دھونے سے پہلے اور دھونے کے بعد کی چمک کا مشاہدہ کیجیے۔ دھات کے رگڑے ہوئے حصے اور ابھی تراشے ہوئے حصے کی سطح سے روشنی کی شعاعوں کا انعکاس ہوتا ہے اور دھاتیں چمکدار دکھائی دیتی ہیں۔ دھاتوں کی تیسری طبعی خصوصیات ہے سختی۔ دھاتیں عام طور پر سخت ہوتی ہیں، لیکن سوڈیم اور پوٹاشیم جیسی دھاتیں ملائم ہوتی ہیں اور بآسانی چاقو سے کاٹی جا سکتی ہیں۔ دھاتوں کی چوتھی طبعی خصوصیات تار پذیری۔ کیا آپ کبھی سونار کی دکان پر گئے ہیں؟ کیا سونار کو سونے یا چاندی کے تار بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ سوراخ سے دھات کو کھینچ کر تار بنائے جاتے ہیں۔ اسے دھات کی تار پذیری کہتے ہیں۔ دھاتوں کی پانچویں طبعی خصوصیات ورق پذیری۔ ایک کیل پر ہتھوڑے کے ذریعے مسلسل ضرب لگاتے جائیے، کچھ وقفے بعد ایک پتلا ورق یا پترا تیار ہوتا دکھائی دے گا۔ اس خاصیت کو دھات کی ورق پذیری کہتے ہیں۔ دھاتوں کی چھٹی خصوصیات موصل حرارت۔ تانبے کی پٹی کے سرے پر موم لگائیے اور دوسرے سرے کو گرم کیجیے۔ کیا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ کر کے اپنے معلم سے گفتگو کیجیے۔ دھاتیں موصل حرارت ہوتی ہیں۔ چاندی، سونا، ایلومینیم حرارت کی عمدہ موصل ہیں۔ موصل برق۔ بجلی کے تار بنانے کے لیے کن کن دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ دھاتیں عمدہ موصل برق ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے برق گزر سکتی ہے۔ سیسہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ سیسہ ایک ایسی دھات ہے جو حرارت اور برق کا موصل نہیں ہے، یعنی سیسے میں نہ ہی حرارت گزرتی ہے اور نہ ہی برق گزرتی ہے۔ دھاتوں کی کثافت۔ دھاتوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سوڈیم، پوٹاشیم اور لیتھیم کی کثافت پانی کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ دھاتوں کا نقطۂ پگھلاؤ اور نقطۂ جوش۔ عام طور پر دھاتوں کے نقطۂ پگھلاؤ اور نقطۂ جوش زیادہ اونچے ہوتے ہیں۔ دھاتوں کی اہم خصوصیات: گونج۔ آپ کے اسکول کا گھنٹہ کس دھات سے بنا ہوا ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ دھاتیں گونج پیدا کرتی ہیں۔ آئیے اب ادھات نان میٹلز کے بارے میں جانتے ہیں۔ کاربن، سلفر، فاسفورس یہ ادھاتوں کی مثالیں ہیں۔ عموماً ٹھوس ادھاتیں فوٹک ہوتی ہیں، یعنی ان پر زور سے ضرب لگایا جائے تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان میں چمک نہیں ہوتی۔ ادھاتوں کی طبعی خصوصیات: فزیکل پراپرٹیز آف نان میٹلز۔
अधातों की तबई खसूसियात में सबसे पहले हम अधातों की तबई हालत देखेंगे। आम दर्जा हरारत पर अधातें ठोस, माए और गैस हालत में पाई जाती हैं। ठोस हालत में कार्बन, सल्फ़र और फास्फोरस इसकी मिसालें हैं। इसी तरह माए हालत की मिसाल ब्रोमीन है और गैसी हालत की मिसाल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह हैं। अधातों में चमक नहीं होती सिवाय हीरे और आयोडीन की कलमों के। कुछ अधातें बेरंग और कुछ मुख्तलिफ रंग वाली होती हैं। कोयले, कार्बन पर हथौड़े से ज़रब लगाइए, क्या होता है मुशाहिदा कीजिए। ठोस अधात फूटक होती हैं। कुछ अधातें मुलायम होती हैं, लेकिन हीरा जो कार्बन का बहरूप है सख्त तरीन कुदरती शय है, यानी अधातों में फूटकपन होता है। अधातें तार पजीर और वर्क पजीर नहीं होती। इसी तरह से अधातें हरारत और बर्क की गैर मौसिल होती है, यानी अधातों में ना ही हरारत गुज़रती है और ना ही बर्क गुज़रती है। सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसी अधात है जो बर्क की उम्दा मौसिल है। अधातों की कसाफत धातों की बनिस्बत कम होती है। अधातों के नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश कम होते हैं, लेकिन कार्बन, बोरॉन ठोस अधातें हैं, ये ऊंची दर्जा हरारत पर पिघलती हैं। आइए अब धातनुमा का मुताला करते हैं। आर्सेनिक AS, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, एंटीमनी SB ये धातनुमा की मिसालें हैं। धातों की कीमियाई खसूसियात। धातों की कीमियाई खसूसियात में हम धातों की इलेक्ट्रॉनी तश्कील, आयन की तैयारी, ऑक्सीजन के साथ ताअम्मुल, तेज़ाब के साथ ताअम्मुल, पानी के साथ ताअम्मुल वगैरह समझेंगे। आइए सबसे पहले हम धातों की इलेक्ट्रॉनी तश्कील के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनी तश्कील तमाम अनासिर की कीमियाई खसूसियात की बुनियाद है। धातों की कसीर तादाद ऐसी है जिसके जौहर के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम यानी 3 तक होती है। जैसा कि यहाँ पर एल्युमिनियम की जौहरी साख्त दिखाई गई है, इसके आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह सोडियम जिसका जौहरी अदद 11 है, इसके बैरूनी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम का जौहरी अदद 12 है, इसके बैरूनी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एल्युमिनियम के बैरूनी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन की तैयारी। धातें अपने गिरफ्ती मदार से इलेक्ट्रॉन खोकर मुस्बत बरकीदा आयन यानी मुस्बत आयन केटाइन तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। धातों का ऑक्सीजन के साथ ताअम्मुल। धातें ऑक्सीजन के साथ मिलाप करके अपने ऑक्साइड तैयार करती हैं। धात और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर धात का ऑक्साइड बनता है। धाती ऑक्साइड असासी खसूसियात रखते हैं। धाती ऑक्साइड तेज़ाब से कीमियाई मिलाप करके नमक और पानी बनाते हैं। धातों के ऑक्साइड और तेज़ाब दोनों मिलने से नमक और पानी बनता है। धातों का तेज़ाब के साथ ताअम्मुल। अक्सर धातें हल्काया तेज़ाब के साथ अमल करके धातों के नमक तैयार करती हैं और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। धातों पर हल्काया तेज़ाब डालने या मिलाने से नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। धातों का पानी के साथ ताअम्मुल। कुछ धातें पानी के साथ ताअम्मुल करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कुछ धातें पानी के साथ कमरे के दर्जा हरारत पर, कुछ गर्म पानी के साथ, जबकि कुछ धातें पानी की भाप के साथ ताअम्मुल करती हैं। इनके ताअम्मुल की शरह मुख्तलिफ होती है। आइए अब अधातों की कीमियाई खसूसियात देखते हैं। अधातों की कीमियाई खसूसियात में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनी तश्कील देखते हैं। अक्सर अधातों की गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा यानी 4 से 7 होती है, जबकि हमने धातों में देखा कि इलेक्ट्रॉन की तादाद कम से कम होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन का जौहर दिखाया गया है जिसके बैरूनी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह नाइट्रोजन का जौहरी अदद 7 है जिसके बैरूनी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन जो अधात है इसका जौहरी अदद 8 है जिसके बैरूनी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन जिसका जौहरी अदद 17 है, इसकी बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है। अधातों में आयन की तैयारी। अधातों के गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन कबूल करके मनफी बरकीदा आयन यानी
आयनाइन तैयार करने की खासियत होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन के बैरूनी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपना बैरूनी मदार मुकम्मिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कबूल करती है और अपने बैरूनी मदार को मुकम्मिल करके नाइट्राइड आयन बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ तामुल। धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके उनके ऑक्साइड्स तैयार करती हैं। धात और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर धातों के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ तामुल। अधातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके उनके ऑक्साइड्स तैयार करती हैं, यानी अधात और ऑक्सीजन अधातों के ऑक्साइड बनाते हैं। अधातों के ऑक्साइड्स तेज़ाबी खासियत रखते हैं। वो असास से तामुल करके नमक का महलूल और पानी तैयार करते हैं। अधातों के ऑक्साइड पानी से तामुल करके तेज़ाब तैयार करते हैं। अधातें हल्काए तेज़ाब के साथ कीमियाई तामुल नहीं करती। आइए अब कुछ रईस धातों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सोना, चांदी, प्लाटिनियम, पैलेडियम, रोडियम, ये सब रईस धातों की मिसालें हैं। रईस धातें अनासिर की शक्ल में पाई जाती हैं। इन पर हवा, पानी, हरारत का असर नहीं होता। कमरे के दर्जाए हरारत पर इनका ताकल और तकसीद नहीं होती, यानी इनमें आम दर्जाए हरारत पर टूट फूट नहीं होती। रईस धातों के इस्तेमाल। रईस धातों का इस्तेमाल जैसे सोना, चांदी और प्लाटिनियम का इस्तेमाल ख़ास तौर पर ज़ेवरात बनाने के लिए होता है। इसी तरह रईस धातों का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। जैसे चांदी का इस्तेमाल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है। इसी तरह सोने और चांदी के तमगे भी बनाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में रईस धातों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा मेटल डिटेक्टर में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाटिनियम, पैलेडियम धात तमासी आमिल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आइए अब सोने के खालिसपन के बारे में जानते हैं। सोना एक रईस धात है और कुदरत में अंसर की शक्ल में पाया जाता है। 100% खालिस सोना यानी 24 कैरेट सोना खालिस सोना नरम होता है। खालिस सोने से तैयार शुदा ज़ेवरात दबाव की वजह से टेढ़े हो जाते हैं या टूट जाते हैं, इसलिए इसमें सुनार तांबे या चांदी की मखसूस तनासुब में आमेजिश करता है। ज़ेवरात तैयार करने के लिए 22 कैरेट या इससे कम कैरेट का सोना इस्तेमाल किया जाता है। सोने का खालिसपन कैरेट और फीसद। 24 कैरेट सोना 100% खालिस होता है। 22 कैरेट सोना 91.66% खालिस होता है। 18 कैरेट सोना 75% खालिस होता है। 14 कैरेट सोना 58.33% खालिस होता है। 12 कैरेट सोना 50% खालिस होता है, जबकि 10 कैरेट सोना 41.66% खालिस होता है। ताकल, फरसूदगी। नमी की वजह से धातों पर हवा की गैसों का अमल होकर धातों के मुरक्कब तैयार होते हैं। इसकी वजह से धातों की झीज होती है। इसे ही फरसूदगी या ताकल कहते हैं, जिसे आम जुबान में जंग लगना कहा जाता है। मखलूत धात, दो या ज़्यादा धातों या धातों और अधातों के मुतजानिज़ आमेज़े को मखलूत धात कहते हैं। हस्ब ज़रूरत अज़्ज़ाए तरकीबी मुख्तलिफ तनासुब में मिलाकर मखलूत धात तैयार की जाती है। मसलन घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहा और कार्बन, क्रोमियम, निकल से बनाए गए मखलूत हैं। पीतल, तांबा और जस से बनाया जाता है। कांसा, तांबे और शीशे से बनाई गई मखलूत धात है।